Hello, dear students. Today we have to study the mobility. Mobility means the drift velocity per unit electric field is known as the mobility. Here mobility mu it is equal to Vd upon E, drift velocity per unit electric field. We know that drift velocity it is equal to E tau upon m. So mu is equal to E tau upon m upon E cancelled out. So E tau upon m. This is known as the mobility. Mobility for electron we show as mu E. It is equal to E tau upon m E. Mu is equal to Q tau upon m. For any charge Q, for कोई भी चार्ज अगर है, अगर यही चीज़ अगर हम सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं तो मोबिलिटी इट इज़ इक्वल टू म्यू एच इज इक्वल टू एच टाउ अपान एम एच लिखा जाता है होल के लिए. तो ये सिंपल बात है. फॉर एनी चार्ज म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ अपान एम. इलेक्ट्रॉन के लिए ई टाउ अपान एम. So here mobility it is equal to for mobility for the whole mu h is equal to E h tau upon m h. सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं. दिस इज द मोबिलिटी. नाउ हियर रेसिस्टेंस. व्हाट इज द cause of the resistance? The basic cause of resistance is the collision. The free electron collide with positive immobile ions. Due to the frequent collision, movement of the electron decreases as a result resistance increases. Frequent collision, जितना ज़्यादा collision होता, collision के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिक्रीज होता. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज which so resistance develops in the conductor. इसलिए कंडक्टर में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है. तो बेसिक काज ऑफ द रेसिस्टेंस इट इज इक्वल टू द कोलिजन. इन नाइक्रोम पॉजिटिव इमोबाइल आयंस आर नॉट इन डिफिनिट ऑर्डर. ये जो नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम होते हैं वह रैंडम ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द नाइक्रोम एंड क्रोमियम आयंस. एज ए रिजल्ट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज. As a result, frequent collision, the kinetic energy increases, and this kinetic energy converted into vibrational energy converted into heat. So heat is produced. नाइक्रोम में इसीलिए हीट पैदा होती है कि बार बार उसके जो इमोबाइल आयंस होते हैं नाइक्रोम और निकिल, ये वाइब्रेट करने लगते हैं कोलिजन से, और वह वाइब्रेट करते हैं तो हीट जनरेट होती है. इसीलिए नाइक्रोम का वायर ही लगाया जाता है हीटर में, आयरन में, एट्सेट्रा. व्हेन ई मूव्स इट कोलाइड विद द आयंस एंड एज ए रिजल्ट रेसिस्टेंस इंक्रीजेज. इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन मेक पेयर्स ड्यू टू कोलिजन and the vibrational energy which is converted into heat. So here you see combination of resistance. दो तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन.
रेसिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. When resistors are connected, one end of the resistor is connected to the other end. This is known as the series combination. Here R1, R2, R3 are connected in series. In series combination, the current remain the same. So potential difference V is applied, and potential difference is different for the different resistors. And here V is equal to V1 plus V2 plus V3, V is equal to IR. So IR1 plus IR2 plus IR3, तो R is equal to R1 plus R2 plus R3. In series combination, net resistance increases because the length increases. सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि उसका लेंथ बढ़ता है इसलिए रेसिस्टेंस बढ़ जाता है. ध्यान में रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कंबाइन द रेसिस्टेंस इन सीरीज, लेंथ इंक्रीजेज एंड वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. एज द लेंथ इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हियर यू सी all the resistors, one end connected at one common point and other ends are connected at another common point. Suppose resistors R1, R2, R3 are connected between A and B. Then here potential difference, if V is applied, A और B के बीच का potential difference R1 के क्रॉस VA माइनस VB, R2 के क्रॉस VA माइनस VB, R3 के क्रॉस VA माइनस VB. So in parallel combination, the potential difference remain the same. So here we see that the potential difference between the 2 points remain the same. When battery supplies current I, this current is divided according to the resistance. स्मॉलर रेसिस्टेंस लार्जर करंट पासेस. ये ध्यान में रखना, स्मॉलर रेसिस्टेंस है तो लार्जर करंट पासेस. जितना भी हेवी वाट का 100 वाट का अगर बल्ब है तो उसका रेसिस्टेंस हमेशा कम होता ताकि उसमें अधिक करंट जाए. ये ध्यान में रखना. तो लार्जर करंट पासेस इन द हायर वाटेज. सो हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल रिमेन द सेम. I is equal to I1 plus I2 plus I3 and I is equal to V upon R. It is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. We cancelled out. So 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. In parallel combination, net resistance decreases because area increases and the length decreases. Here you see. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेसिस्टेंस डिक्रीजेज. रेसिस्टेंस घट क्यों जाता है? इसलिए घट जाता है कि एरिया इंक्रीज कर जाती है. यहाँ से जो करंट जाएगी, अब तक अगर सीरीज में है तो सेम एरियाज जाती है, यहाँ भी डिफरेंट एरियाज चली जा रही है. मतलब ओवरऑल सेम करंट के लिए एरिया पाथ और बढ़ जाते हैं, एरिया बढ़ जाती है और पाथ की लेंथ घट जाती है. एज ए रिजल्ट resistance, overall net resistance in parallel combination decreases. Here we can see some examples for the series and parallel combination. Here you see 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, here 10 ohm, it is 10, 10. All these are resistance are connected. Find the equivalent resistance between A and B and the equivalent resistance between A and C. A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें चाहिए. A और B के बीच हमेशा करंट जो फ्लो होती है हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है. ध्यान में रखना, क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है. तो A और B, तो A और B के बीच अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह का है. इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ क्लोज नहीं है. हमारे जिस पाथ के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं A और B के बीच
इसको डिलीट कर देंगे, केयर करना, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द क्लोज्ड सर्किट। हमेशा सर्किट, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होती है, ए और बी के बीच यहाँ तक क्लोज बन रहा है। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाता है 10 10 10 10, इट इज़ इन सीरीज 10 10 10 सीरीज 30, और 30 और दिस 10 they are connected, 30 and this 10 will be in parallel, तो 30 into 10 upon 30 plus 10, और ये 10 और ये 10 और ये दोनों मिला के फिर सीरीज में हो जाएगा। तो 300 इट इज़ इक्वल टू 10 plus 10 20, और हियर इट इज़ 7.5, तो 27.5। This is the equivalent resistance between A and B. If we have to calculate the equivalent resistance between A and C, then here we see A and C. A और C के बीच अगर equivalent resistance चाहिए, तो अब ये इसको हम ले लेंगे इनिशियली और एंड पॉइंट, और इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यह क्लोज पाथ में नहीं आता है। ये हमारा इस पार में ऐसे आ जाता है, इस पार में ए है, सी है, और ये वैल्यू हमारे पास 10 10 10 10 ऐसे हो जाता है। इट इज़ आल्सो 10, यहाँ पे 10, और इधर का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये क्लोज पाथ बन जाता है ए और सी के बीच। तो 10 10 20, 10 एंड 10 20, 20 एंड 20 दे आर इन पैरेलल। सो और 10 और ये 10 और ये 20 अगर इसको कनेक्ट कर दें, तो इस तरह से अब ये देख लो 20 20 हो गया, और हम इसको 20 20 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 10 प्लस, इसको फिर सीरीज में तीनों हो जाएंगे। ये हो जाएगा 10 हमारे पास आ गया। इट इज़ 10 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 एंड प्लस 10, तो ये हमारे पास ही वैल्यू मिलेगी 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 30। इसी तरह से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये 3 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन निकालें, ये देखना 30 ओम है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हियर ए से कौन सा, ए हमारा यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। ये 2 पॉइंट पर हर जगह सेम वायर से कनेक्टेड है। ए को हम यहाँ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ ए है तो सेम वायर से कनेक्टेड होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। इसका मतलब इस ए पर 3 और 6 दोनों कनेक्टेड है, तो 3 और 6 को हम ए मान लेंगे। जहाँ सेम वायर से होता है कनेक्ट, वो सेम पोटेंशियल पर। तो ए अगर यहाँ है तो हम इसको ए को यहाँ भी कंसीडर कर लेंगे, यहाँ को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 3 और 6 आर कनेक्टेड, वन कॉमन पॉइंट। और ए देख लेना, ये दोनों कनेक्ट है ओ पर, ओ से कनेक्ट है बी, सो ये बी से कनेक्ट है। लेकिन यहाँ ए और बी के बीच 30 ओम कनेक्टेड है, ए और बी के बीच 30 ओम कनेक्ट है। इस तरह से अब ये दोनों पैरेलल, ए सीरीज और फिर ये पैरेलल, वी कैन कनेक्ट लाइक दिस। So this is the series and parallel combination. Now we have to study what is the cell. Cell is a device which is used to maintain the potential difference between the two terminals of a cell. 2 टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आता है, उसे सेल कहते हैं। सेल इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। तो किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आता है सेल। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन तेजी से भागता है। एंड दैट इज द काज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द बेसिक काज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। It provides the energy to the charge flow in the circuit.
इसलिए सर्किट में करंट फ्लो होती है। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है, दैट इज नोन एज द इंटरनल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल is known as the internal resistance. Internal resistance depends upon the concentration of the electrolyte. उसके concentration पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस पे concentration पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वह घट जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ऑन व्हाट फैक्टर द इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, और भी हाउ मच एरिया इज डिप्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्लेट होती है, प्लेट की कितनी एरिया इलेक्ट्रोलाइट पे इलेक्ट्रोलिटिक उसमें सॉल्यूशन में डूबी हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। ज़्यादा एरिया डिपेंड है तो रेसिस्टेंस कम, अगर थोड़ी सी एरिया डिप्ड है तो रेसिस्टेंस उसका अधिक होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज़ द वर्क डन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज़ द वर्क डन टू मूव the unit positive charge once in a complete circuit. It is known as the electromotive. अब ये हमारे पास अगर सेल है तो पूरे सर्किट में यहाँ से यहाँ तक एक बार चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ द वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन ए कंप्लीट सर्किट is known as the electromotive force. Potential difference, it is the work done to move the charge in the external circuit. Potential external circuit में चार्ज को मूव करने में जो वर्क करना पड़ता है इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन अदर वे इट इज द इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट इज द वर्क डन टू मूव the unit positive charge between any two points of the circuit is known as the potential. सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच करंट फ्लो कराने में, चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के बीच। तो अगर हम पूरा वर्क डन की बात करें यहाँ पर, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात अगर हम करें तो अगर पूरे सर्किट में अगर यहाँ से यहाँ तक बाहर अगर V इक्वल टू V अगर हो रहा है, अंदर फ्लो कराने के लिए इधर V डैश है, तो नेट वर्क डन की बात अगर हम करें तो मान लेते हैं कि बाहर फ्लो कराने में W1 और अंदर कराने में W2। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अगर लें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज W, इट इज़ वी नो दैट W इट इज़ इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई Q इट इज़ इक्वल टू B हो गया। तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू W बाई Q अगर हो रहा है तो ये हमारे पास यूनिट चार्ज अगर हो गया तो इसको हम इसी को EMF कहते हैं। ये पूरे सर्किट के लिए इसको हम EMF लेते हैं। बाहर के लिए हमने V ले लिया, अंदर के लिए V डैश ले लिया, इट इज़ इक्वल टू IR। बाहर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास स्मॉल r है, तो हमारा जो EMF हो गया E इज इक्वल टू IR प्लस IR और I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इन ओपन सर्किट, केयर करना, इन ओपन सर्किट I is equal to 0, then E is equal to B, I is equal to 0,
then E is equal to B. Thus EMF it is equal to potential difference in open circuit. इस तरह से EMF को हम कह सकते हैं कि EMF it is the potential difference in the open circuit. अगर सेल से करंट नहीं ड्रा की जा रही है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर हो जाता है. और thus this is also indicates that in open circuit EMF exists but the potential difference is zero. ओपन सर्किट में EMF होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट. सर्किट से जब करंट ड्रा की जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. दिस implies that EMF is the independent of external resistance. EMF जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है. अगर हम EMF E और रेसिस्टेंस में अगर एक ग्राफ ड्रा करें तो EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेसिस्टेंस. ध्यान में रखना, EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेसिस्टेंस, ऐसा ग्राफ बनता है, ये भी ध्यान में रखना है. और अगर हम V और R में अगर ग्राफ बनाएं, V और R में, so we can see here, we know that V is equal to IR and I is equal to E upon R plus R. So if R is equal to 0 है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, V is equal to, यहाँ पे R से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो V is equal to E upon 1 plus R upon R. If R is equal to 0 तो V is equal to E upon R plus R upon 0 और ये वैल्यू इट इज़ इक्वल टू हो जाएगी 0. तो ये हमारे पास हो जाएगा 0. अगर R इज इक्वल टू R पुट करें इसमें तो हो जाएगा V इज इक्वल टू E बाई 2. इफ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हाट विल हैपन, इट इज़ इन्फिनिटी, देन 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी E अपॉन इन्फिनिटी. Here it is equal to R upon infinity, it is equal to 0 to 1 plus 0, it is equal to E. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ध्यान में रखना. If it is very important graph for your exam, here V and R, तो ये R है, it is E by 2, तो A हमारे पास E. तो जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो V E के बराबर हो जाएगा. इस तरह का ग्राफ बन जाते हैं. इसी तरह से अगर हम ग्राफ बनाएं V और I के बीच, इफ वी ड्रा द ग्राफ बिटवीन V एंड I, देन व्हाट विल हैपन, हियर V एंड I, सो ग्राफ विल बी V and I, दिस इज माइनस R. V इज इक्वल टू E माइनस आई R एंड V इज इक्वल टू माइनस R I प्लस E. सो ग्राफ इट इज इक्वल टू, सो स्लोप गिव्स द इंटरनल रेसिस्टेंस. This is the graph. Okay.